Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. So, how are you all? Are you all good? Yes, ma'am. Okay. So, in today's class, we have to start with joins in relational algebra. See, there is one student asked me a question ki, how we have to execute the queries that we are learning in relational algebra. So, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिलेशनल अलजेब्रा इज अ काइंड ऑफ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो हम वे आउट लर्न कर रहे हैं इन ऑर्डर टू राइट अ बेसिक क्वेरी इज नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड येट। वी आर हमने जो सीक्वल हमारा जो माई सीक्वल डेटाबेस है उसमें हम सीक्वल लैंग्वेज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट? हम इन लैब के अंदर हम देख रहे हैं ना कि बाय यूजिंग which is a kind of a non-procedural language, but जो relational algebra है ये procedural language है आपकी, ठीक है, जिसमें आप but it is a theoretical concept. I think मोक्ष ने पूछा था। मोक्ष, are you there in the class? मोक्ष is not joined yet, I think. तो इसमें जो हमने जितनी भी क्वेरीज देखी है ना, हमने बेसिक 5 ऑपरेशंस पढ़े हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े हैं रिलेशनल अलजेब्रा में? What are the 5 operations that we have studied? Yes. Ishita, what are the 5 operations that we have studied in relational algebra? Yes, I think I have asked a very difficult question. Anji, क्या होता है relational algebra? Come on, if you don't know, you can simply say. Okay, who will answer? Prashant, do you want to answer? Yes. See, keeping yourself mute and not responding in the class is not a way of expression. You can't express or you can't behave like this in my class. If you don't know, you can simply say, ma'am, I don't know. But staying quiet without responding is not good. Hanji. Ma'am, can I say now? I thought my mic wasn't working that time. Okay, say Ishita. Ma'am, basically relational algebra consists of a set of operations that are used to link two relations. Okay. So basically relational algebra क्या है is another way of executing queries from your database, and in relational algebra you express or you will tell the complete process of how you are executing the data, of how you are retrieving the data from the database, right? A relational algebra is a kind of a procedural query language, and in relational algebra there are various set of operations that you execute, like the very first operation that we have learned. कौन सा ऑपरेशन हमने सीखा है? कौन से 5 ऑपरेशन? selection, यस, सिलेक्शन, projection, ma'am, projection, हाँ, Cartesian, union, intersection, or Cartesian. yes. So these are yes, the ma'am. 5 operations that we have studied. We have learned how do we select a particular row from the database, how do we select attributes from the table, and how we can rename our attributes. And moreover, we have learned about the various set operations also कि कैसे हम union, दो relations का union कर रहे हैं, तब हम intersection produce कर रहे हैं, हम division देख रहे हैं. तो these are the various operations that are associated with the relational algebra. Now अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा था, व्हाट वाज कार्टेशियन प्रोडक्ट? हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो रिलेशन है, लेट्स सपोज वी हैव वन रिलेशन आर जिसके अंदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट है a1, a2, a3
अप टू an, ठीक है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है R के अंदर। और लेट्स सपोज वी हैव अनदर रिलेशन S जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट है A1, लेट्स सपोज इसको हम अलग नोटेशन B1, B2 अप टू BM, ठीक है। नाउ अब हमें we want to execute a query that involves a combination of tuples from both the relation R and S। तो उस केस में हमारे पास जो सिलेक्शन ऑपरेशन होता है, जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन होते हैं, these are the kind of unary operations, they want only a single relation to work upon। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनका कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करने के लिए we'll do the product। तो दिस क्रॉस सिंबल डिनोट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आई थिंक सबको आती है, और आई थिंक एवरीवन नोज हाउ डू वी एबल टू डिटरमाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? हर क्लास में आई थिंक वी आर रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एवरी रो ऑफ द फर्स्ट रिलेशन इज मल्टीप्लाइड विद ईच टपल ऑफ द सेकंड रिलेशन, ठीक है। सो अब इसके अंदर आपके पास अगर मैं बोलूं तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो रिजल्टेंट रिलेशन आएगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने होंगे? जल्दी बोलो। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल इट इज n plus m। total number of attribute will be n plus m and total number of tuples will be, अगर इसके अंदर मेरे पास 5 रोज है और इसके अंदर मेरे पास 6 रोज है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी कितनी होंगी? 30। m into n। m into n, हाँ, m into n that is 5 into 6 that is 30, ठीक है। So each row of the first relation will be multiplied with each row of the second relation। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। नाउ अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ हमारे पास एक डिसएडवांटेज है कि बहुत ज्यादा हमारे पास रिडंडेंट डेटा आ रहा है एंड द स्टोरेज रिक्वायर्ड टू स्टोर सच अ रिलेशन। जैसे अभी तो मैंने सिर्फ आपको 5 और 6 टपल्स का एग्जांपल दिया, देयर मे बी सम लार्ज टेबल्स। अगर उनका हम ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा इररिलेवेंट डेटा आएगा और बहुत ज्यादा उसके लिए स्टोरेज चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का इम्प्रूव वर्जन होता है जॉइंस। जॉइन क्या है, अब जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है, जॉइन इज बेसिकली द कार्टेशियन प्रोडक्ट applied, that is the product applied on two relation according, and it is then again filtered with some selection condition। मतलब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर रहे हैं and we are applying some selection conditions only also। मतलब कि जो प्रोडक्ट हो रहा है वो सिर्फ उन्हीं टपल्स के बीच में हो रहा है that are matching the selection condition। Are you getting me? So join is basically the combination of two relations according to some selection condition। All of you got the definition of join? join क्या होता है आपसे पूछ, joins का पे ना काफी ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि they may ask you what is inner join, what is outer join, or what is left outer join। उनके आपको मतलब कि I have seen number of questions is being asked from in direct interviews। जो database companies होती है they'll ask questions from joins। moreover आप competitive exams में भी join में से काफी questions देखोगे। And from your university point of view, again, it is a very important topic। So let's get start with the basic join। Join जो होते हैं हमारे 3 तरीके के, basically 2 तरीके के हमें joins पढ़ने हैं। One is your inner join, ठीक है, and other one is your outer join, ठीक है। अब जो inner join होता है, inner join के अंदर हमें 3 categories पढ़नी है। One is called the theta join and equi join and the last one is your natural join, ठीक है। तो let's start with basic inner join। inner join के अंदर अगर मैं इसका आपको वेन डायग्राम दिखाऊं, चलो वेन डायग्राम में भी दिखाती हूँ, मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले आप सबको जॉइन की डेफिनेशन पता चल गई है कि व्हाट इज जॉइन इन रिलेशनल अलजेब्रा। देखो जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास कोई सिलेक्शन कंडीशन नहीं थी। वी आर सिंपली कंबाइनिंग द टू रिलेशन और ऑल द बेसिस। हम हर एक टपल के को दूसरी टपल से मल्टीप्लाई कर रहे थे। नाउ इन जॉइन we are doing the combination of two, we are actually producing the combination of two relation and we are combining the tuples of the two relation based on some selection condition। Is it clear? Now it will be more clear to you। Let's understand this inner join। तो सबसे पहले हमारा पहला कैटेगरी आता है थीटा जॉइन।
इनर जॉइन का पहले मैं डेफिनेशन बता दूं कि क्या होता है। इनर जॉइन बेसिकली अगर आपके पास दो रिलेशंस है, now the result will be, if you are doing the inner join, only the tuples which are both, which are present in both the relations will be the result of inner join. So inner join के अंदर अगर आपके पास let me, जैसे आपके पास एक ये रिलेशन है R, ठीक है, एक और रिलेशन है S. So what will inner join will be? Inner join क्या होगा? Inner join होगा आपका this thing, ये वाला, जो ये इंटरसेक्शन आपको सेक्शन दिख रहा है, दैट द सेट ऑफ टपल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बोथ द रिलेशंस विल बी द रिजल्ट ऑफ इनर जॉइन. तो ये वाला जो शेडेड पार्ट है ना, ये आपका इनर जॉइन होगा. तो अगर आप जॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स, इनको वेन डायग्राम्स बुलाते हैं ना, तो वेन डायग्राम्स की हेल्प से अगर एक्सप्लेन करोगे तो दैट विल बी मच बेटर. और मोरओवर द वेन डायग्राम्स कैन स्ट्रेट अवे कम्स इन योर एग्जाम्स. So am I audible now? I got disconnected. All right, so what we were doing the inner join, and inner join I was telling you about ki the result will be the set of tuples that are present in both the relations. ठीक है, so let's start with the theta join now. Theta join, इसका नाम थीटा ज्वाइन क्यों है? बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं कि थीटा ज्वाइन ओनली इज अप्लाइड इन टू रिलेशन जिसके अंदर कोई मैचिंग एट्रीब्यूट नहीं होता. जैसे यहाँ पर देखो, लेट्स सपोज R1 और R2 आपके दो रिलेशंस है जिसके अंदर A1 A2 अप टू AN एंड B1 B2 अप टू BN दो रिलेशन, दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, एंड देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन R1 एंड R2. R1 एंड R2 का इंटरसेक्शन 5 है. नाउ इन दैट केस इफ यू वांट टू कंबाइन the two relations, तो वो आप combine कर सकते हो on the basis of theta join. That means you are giving some selection condition. Let's suppose just see this example. Yes, सब लोग समझ रहे हैं? Just pay attention here. यहाँ पे ध्यान से देखो कि let's suppose ये आपके पास एक student नाम की table है, and if I recommend कि आप लोग please मेरे साथ ये tables draw करो, and just draw the resultant table also with every join. Just start with theta join and draw the student table. Roughly draw the student table which is having set of attributes like student ID, name and standard. उसके बाद दूसरी table है आपकी subject जिसके अंदर आपके पास class है और subject है. Now अब आपके पास यहाँ ध्यान से देखो, when there is no matching attribute, कोई matching attribute है यहाँ पर दोनों tables के अंदर? एक टेबल है स्टूडेंट, एक टेबल है सब्जेक्ट. व्हेन देयर इज नो मैचिंग एट्रीब्यूट एंड नाउ व्हेन यू वांट टू कंबाइन, तो आपने लिखा, लेट्स सपोज आपने इसको लिखते कैसे, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ डूइंग थीटा जॉइन का सिंटेक्स भी आना चाहिए आपको. तो आपने रिजल्टेंट टेबल का नाम लिखा स्टूडेंट डिटेल. ये नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप ये नाम कुछ भी लिखोगे, मेन फोकस शुड बी हेयर. तो यहाँ पे स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट टेबल, is the name of the first relation, and यहाँ पर subject is the name of the second relation. और ये जो चीज है ना, ये पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो साइन बना हुआ है, ये वाला साइन, can you all see that? This sign is a join sign. Let me draw this sign for you. ये वाला साइन, ये वाला साइन जो होता है ना, अगर ये एक रिलेशन R है, ठीक है, और ये एक रिलेशन S है, एंड दिस जॉइन, दिस इज अ जॉइन ऑपरेटर. पर यहाँ पर आप थीटा मतलब कि आपकी सिलेक्शन कंडीशन लिख रहे हो. तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा क्या लिखा है आपने कि स्टूडेंट डॉट SID इज इक्वल टू सब्जेक्ट डॉट क्लास. दिस इज योर सिलेक्शन कंडीशन. मतलब कि यू आर कंबाइनिंग द two set of tuples from both the relation on the basis of this joining condition कि student table का जो SID attribute है should be equal to subject table का class attribute. तो आपने क्या लिखा, 101 और 102, ये वाला सॉरी SID ये है STD 10 और 11. Yes, where I was, मैं आपको बता रही थी कि
हमें थीटा ज्वाइन करना है ऑन दिस एट्रीब्यूट। तो आपने ये लिखा, जो आपने कंडीशन लिखी ना, तो इसका रिजल्टेंट टेबल ड्रॉ करके दिखाओ मुझे। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट टेबल? आपका जो रिजल्टेंट टेबल आएगी उसके अंदर व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स? द एट्रीब्यूट्स विल बी, पहला तो आपका SID, दूसरा नेम, तीसरा STD, then class and then subject. Now you are joining the two relations on the basis of this attribute. SID should be equals to class. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 101 Alex 10 10 maths, then 101 Alex 10 10 English, and then 102 Maria 11 music, and 102 Maria 11 sports. Is it clear? तो यहाँ पर आपने थीटा ज्वाइन का मतलब क्या है? What is theta join? When the two relations do not have any matching attribute. Now you want to combine the two relations. The two relations could only be combined. You have to give the ज्वाइनिंग कंडीशन, थीटा की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने सबस्क्रिप्ट में लिखा है द फर्स्ट इज अ रिलेशन नेम स्टूडेंट डॉट SID इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट डॉट क्लास। तो इसके बेस पे आपने दो रिलेशंस को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो आप लोग प्लीज इसको ड्रॉ करके देखो, मतलब रिजल्टेंट टेबल बनाओ। क्या आपकी टेबल इसके इक्वल आ रही है? दिस शुड बी योर रिजल्टेंट टेबल। दिस टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी 4। 101 के लिए 2 रो आ गई और 102 के लिए भी 2 रो आएंगी। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये क्लियर है? हाँ जी, शैल वी प्रोसीड अहेड? थीटा ज्वाइन क्लियर है आपको? यस क्लास। Yes, ma'am. बाकी स्टूडेंट सिद्धार्थ, निकिता, निशांत, यू गाइस नेवर इंटरैक्ट इन द, ठीक है? तो थीटा ज्वाइन में आपको दोनों रिलेशन में कोई मैचिंग एट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है? तो सेकंड काइंड ऑफ ज्वाइन है, उसको हम बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन के अंदर यहाँ पर देखो, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है ना, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला जो इसके अंदर ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये वाला जो ऑपरेटर यूज हो रहा है, इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज हो रहा है ना, तो ये इट इज अ काइंड ऑफ इक्वी ज्वाइन ओनली, कि जहां पर आप दो रिलेशंस को ज्वाइन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेटिंग द टू एट्रीब्यूट्स टुगेदर। बट यहाँ पर अगर ग्रेटर देन का साइन होता, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई एज नाम का चीज होती और कुछ ऐसा एट्रीब्यूट होता जिनको आप कंपेयर कर सकते हो, तो अगर यहाँ पे कोई आप ग्रेटर देन का साइन भी यूज कर सकते हो, लेस देन का साइन, मतलब यू कैन यूज एनी ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर, कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू राइट अ कंडीशन, ठीक है? अब अगर ऐसे, I don't know why I'm abnormally terminate हो रहा है बार बार मेरा Zoom। आप लोगों को पता चल रहा है? Yes, ma'am. पता नहीं, Yes, ma'am. it is getting terminated again and again। चलो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी इक्वी ज्वाइन, तो यहाँ पर आपको कंडीशन लिखनी है। जैसे अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, विल बी डूइंग द बैक एक्सरसाइज आल्सो, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे और टर्म्स। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये इक्वी ज्वाइन का एग्जाम्पल ये है जिसमें आप जो कंडीशन देते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर जो यूज करते हो वो इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर आप थीटा ज्वाइन के अंदर यूज करते हो तो उसको आप इक्वी ज्वाइन बुलाते हो। तो दे बोथ आर काइंड ऑफ द सेम थिंग। व्हेन यू आर यूजिंग सम अदर ऑपरेटर देन इट इज बीइंग कॉल्ड एज थीटा ज्वाइन, and the theta join in which you are using the comparison operator as equality, then it is being termed as equi join. Now more focus you need to pay on natural join. So natural join क्या होता है? Again इसका जो symbol है वो इस तरीके से है, ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है? Natural join basically it is a kind of your Cartesian product जिसके अंदर आप दो रिलेशंस को आपस में कंबाइन कर रहे हो, बट दीज टू रिलेशंस हैव नो मैचिंग एट्रीब्यूट, ओ सॉरी,